So let's start our lecture number 2, Kinematics in 2 dimension. So अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था 2D मोशन क्या होता है. 2 dimensional में what is a motion we call it motion in the plane. We have seen के principle of physical independence of two motions. So 2D motions को हमने देखा था elaborate करके how two motions in 1D makes motion in 2D. Then we have seen the projectile motion. We have taken the intro of projectile motion in the last lecture. So last lecture में जो हमने introduction लिया था उसमें बस just हमने basic assumptions देखी थी. क्या assumptions लेके चल रहे हैं to study the case of ideal projectile. We are not considering the long range projectile. We are not considering the earth curvature and rotation, and we are not considering any air drag. So हमारा जो ideal projectile है that is only having the motion under the gravity. Okay, एक ही push लग रहा है from the gravity side. अगर question में एक आध question में demand होगा कि horizontal push है या और कोई push है, that we will consider. But हमारे ideal जो हम parameters निकालेंगे that is on the basis of this assumptions only कि air drag 0 है उसमें, no effect of curvature and no effect of rotation of earth. Okay, and the gravity is constant near the earth surface. ठीक है, these were our assumptions. तो आज का हमारा जो lecture है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, मेजर पैरामीटर्स. जब भी हम लोगों ने बोला प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इट इज़ अ मोशन इन द प्लेन व्हेन यू थ्रो समथिंग एट सम सर्टेन एंगल. सो दिस इज द मोशन इन द प्लेन. इट इज़ दिस ग्राफ सिग्निफाइज द मोशन इन द प्लेन. तो इसके अंदर आई नीड टू फाइंड आउट 3 मेजर पैरामीटर. सो विल स्टडी दोज पैरामीटर. इट इज़ टाइम ऑफ लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ लाइट, maximum height and the horizontal range. R is horizontal range, H is maximum height. These 3 parameters we are going to see. Next part of the lecture we are going to see the equation of trajectory. So equation of trajectory means how my y is varying when this is x, how my y is varying when I change my input x, how my y is varying. ठीक है, the space. Okay, so एक चीज़ जो मैंने देखी है बच्चों को confusion हो जाता है. In the last lecture also we have studied this set of graphs, this parabolic graph which is opening down, and in this also we are going to study this parabolic graph only. So last lecture में हमने देखा था this is position versus time graph. ठीक है, how the position of a coordinate is changing with the time. तो हमने देखा था ये kinematics की जो second equation है ut plus 1/2 at square है ना यहाँ पे. तो यहाँ पे it is varying quadratically with position. ठीक है, टाइम के साथ इसका रिलेशन क्वाड्रेटिक रिलेशन है इसका. सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दिस पैराबोलिक ग्राफ. सो दिस एस इज वेरिंग विद टाइम. तो दैट वाज द ग्राफ. यहाँ पे क्या है, दैट इज अ ग्राफ इन द स्पेस, दैट इज अ ट्रेजेक्टरी ग्राफ. it is not x varies with time, it is not y varies time. Here also x will vary with time. ठीक है, x is a function of time. Here also y is a function of time. ठीक है, टाइम के साथ x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है. बट ये जो हमारा दिस सेकेंड ग्राफ है, the second graph is the trajectory graph. It is a graph in a space. ठीक है, it is not a time space graph, time position graph. It is a graph between x and y के x coordinate change हो रहा है अगर motion में, तो y coordinate किस तरीके से change हो रहा होगा. So it is a graph in space. It is a graph in space, how x is changing, my input is changing and y is changing. So that is a bit of a confusion in students के दोनों पैराबोलिक ग्राफ है. वहाँ पे भी हमने ये पढ़ा था. और यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस, वहाँ पे एस टी ग्राफ है और यहाँ पे इस माई स्पेस ग्राफ एक्स एंड वाई के बीच में. ठीक है, और यहाँ पे एक्स एंड वाई, दिस वाई एंड दिस एक्स ऑल्सो वेरीज विद टाइम. ठीक है, इट वेरीज लीनियरली एंड इट वेरीज सेम क्वाड्रेटिकली विद टाइम. ठीक है, दैट वी आर this varies quadratically with time, this varies linearly with time, because we have seen the projectile motion last lecture we have seen is a combination of, it is a 2D motion, it is a combination of 1D motion. 1D क्या होता है, एक पहला यूनिफॉर्म मोशन होता है जो कि सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ठीक है, दूसरा क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है कि इट इज़ हैविंग अ रिटार्डेशन ऑफ जी ग्रेविटी का in this side and the velocity is in this direction, so it will go stop here and come back here. Okay, come back here. So this is a superimposition of two motion, horizontal and the vertical motion. ठीक है, so this motion which is going up and down, this is also
दिस पोजिशन इज ऑल्सो वेरीज विद टाइम क्वाड्रेटिकली, ठीक है। सो ये भी क्वाड्रेटिकली वेरी कर रहा है, बट यहाँ पे एक्स का जो है विद टाइम, एक्स का जो फंक्शन है विद टाइम, दैट इज वेरिंग लीनियरली, ठीक है। सो दैट इज दैट आई वांटेड टू कन्वे बिफोर गोइंग डीप इनटू द पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल. Okay, so now we'll go into the parameters of projectile. Okay, so again this graph is in the xy space. It is not a time position graph नहीं है. x और y के बीच में ट्रेजेक्ट्री है और x और y का चेंज है, ठीक है, कि how x is changing, so y the output is changing. Okay, and they both itself is a function of time. Okay, they both itself, x is also a function of time and y is also a function of time. So now let's see कि projectile क्या होता है कि I throw an object with some initial velocity, it goes up to here, it comes up to here, ठीक है। अगर it is अगर मैं एक if I throw this thing and if I don't consider the effect of gravity, then it will go in this direction, ठीक है, कोई change नहीं आएगा. But we know कि some push is happening from the top, जो कि डायरेक्शन चेंज करेगा, जो कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि कोई वर्टिकल पुश जब आता है, परपेंडिकुलर पुश आता है, दैट चेंज द डायरेक्शन, और जो अलोंग द लाइन पुश आता है दैट चेंजेस द वेलोसिटी. ओके, सो सम पुश इज कमिंग इन टू दिस इन दिस डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई दिस ये वाले डायरेक्शन पे ना जाने की जगह इट गॉट अ पुश हेयर एंड इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. सो दिस इज माई ट्रेजेक्ट्री. ओके, it will go in this direction. Okay, so my parabolic trajectory is like this. So that's how x increase हो रहा है यहाँ पे, और y it got increase first and then it started decreasing and it comes down to 0. Okay, that is my parabola. इसमें जो मेरा push मिल रहा है that is only, we have considered only one push, that is gravitational push, this g, ठीक है. सो अब मेरे को यहाँ पे निकालना है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इट कम्स डाउन अप टू दिस लेवल, ठीक है, सेम लेवल पे ये वापस आ जाए, तो इसको कितना टाइम पीरियड लगा पूरा यहाँ से थ्रो करने में और कम बैक आने में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे. सो दैट इज़ व्हाट आई कॉल दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ टाइम ऑफ फ्लाइट. सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कितने टाइम बाद वापस आ रहा है, ठीक है. इट कैन बी लाइक दिस कि यहाँ से यहाँ पे फेंका, तब भी इट इज़ यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम पीरियड लगा, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइम ऑफ फ्लाइट. बट नाउ वी आर कंसिडरिंग ओनली द हॉरिजॉन्टल मोशन लाइक दिस. सो दिस इज़ माई टाइम ऑफ फ्लाइट कि यहाँ से यहाँ तक जाने में दिस इज़ कॉल्ड अ टाइम ऑफ एसेंट, और यहाँ से यहाँ तक आने में दिस इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है. एंड बोथ वी नो द सिमेट्री is there in the motion under gravity when we are considering only gravitational force, and that is constant. So the time in going up, this time is equal to this time, ठीक है. So we calculate this time and we multiply it by 2 and we got the total time of flight t. Okay, so let's see how we have done it. So this is my path OAB, O A and B, this is my path. I'll calculate the time of ascent. Time of ascent calculate करता हूँ मैं. Time of ascent means at this point we have seen projectile में we have seen two motion होते हैं. जो vertical motion है उसकी velocity will come down to 0 at this point, ठीक है, because there is a constant push from the vertical side because of gravity. तो जिसकी वजह से ये velocity at this topmost point will get 0. So Vy will get 0 at this topmost point, ठीक है. So this is 0. Initial velocity Uy initial velocity कितनी है मेरी, u sin theta minus gt, ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन लगा दी मैंने काइनेमेटिक्स की. तो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी. दिस इज माई ओ से ए तक का टाइम पीरियड जाने में लगा, ठीक है, यू साइन थीटा. दिस इज माई फर्स्ट. सो नाउ टाइम पीरियड ओवरऑल कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, दिस इज 2u sin theta बाई जी. ओके, सो दिस इज माई एक साइड का ऊपर तक जाने में मेरे को टाइम लगा 2u sin थीटा, और टोटल टाइम पीरियड हो गया मेरा 2u sin थीटा बाई जी. अब ये u sin थीटा क्या है मेरा, इट इज़ नथिंग बट uy, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है. दिस इज माई uy. सो टाइम पीरियड वेरीज एज इनिशियल वेलोसिटी इन u डायरेक्शन, ठीक है. इट डज नॉट वेरी अलॉन्ग द x डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ देयर इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है. और अनदर वे है इसको निकालने का कि मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, s इज 0, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी इज माई u sin थीटा y का, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा इनटू पूरा टाइम पीरियड इज माई यहाँ से यहाँ तक आने में t minus 1/2 gt स्क्वायर, एंड यहाँ से t कैंसिल. इफ आई कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ t, इट विल गिव मी 2u sin थीटा
बाय जी. सो मेजर फैक्टर इसमें है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन योर वर्टिकल स्पीड, इनिशियल वर्टिकल स्पीड. इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी हॉरिजॉन्टल स्पीड. ठीक है, वर्टिकल स्पीड बढ़ा दूंगा मैं. ठीक है, ऑब्वियसली अगर मेरी ये वर्टिकल स्पीड बढ़ जाएगी तो इट विल गो अप टू सर्टेन मोर हाइट जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट पुश मिल रहा है. अगर मेरी वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी कम है सो ये पहले ही यहाँ से डाउन हो जाएगा. अगर मेरी वर्टिकल वेलोसिटी हाई है इट विल गो हाई एंड इट विल कम डाउन. ठीक है, दिस विल बी द वर्टिकल मोशन. ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड ओनली ऑन योर वर्टिकल वेलोसिटी, नॉट ऑन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू वाई, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दैट यू आर गिविंग. ठीक है, सो टू यू बाई जी और टू यू साइन थीटा बाई जी, दिस इज माई टाइम ऑफ फ्लाइट. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने थ्रो किया इस एट सम एंगल थीटा. अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो करते हैं देन व्हाट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू थ्रोइंग एट टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स कि अगर एंगल थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. तो अगर मैं यहाँ से 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे थ्रो कर रहा हूँ तो 30 डिग्री पे व्हाट इज़ माई टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, 30 डिग्री पे ऑब्वियसली यू साइन 30 हो जाएगा और यहाँ पे यू साइन 60 हो जाएगा. और साइन की वैल्यू मुझे पता है इट वेरीज, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन 60 में ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा हो जाएगा देन साइन 30 में. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ दिस वेरीज. सो एट टाइम फॉर दिस थीटा माई टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाई जी, और टाइम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा. साइन की जगह आई विल पुट साइन 90 माइनस थीटा रख दूंगा. और साइन जब भी मेरा ये 90 माइनस थीटा होता है, वी हैव सीन इन द रिडक्शन फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथ्स में देखा था हमने स्टार्टिंग लेक्चर्स में. रिडक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ पे जब भी 90 माइनस थीटा होता है और 90 प्लस थीटा होता है, सो दिस गॉट चेंज टू इट्स को फैक्टर. सो साइन विल गॉट चेंज टू इट्स को फैक्टर कोसाइन. और द रेस्ट ऑफ द थिंग 90 माइनस थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. वी हैव 4 क्वाड्रेंट ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, सो 90 माइनस थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. सो यहाँ पे मेरा आ जाएगा कॉस थीटा. ओके, सो आई हैव रिड्यूस 90 माइनस थीटा टू कॉस थीटा. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. सेम फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 2u cos थीटा बाई जी. अब आई हैव डन T1 by T2, आई हैव टेकन द रेशियो एंड आई हैव गॉट द रिलेशनशिप एज tan थीटा. ओके, दैट्स हाउ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वेरीज. ठीक है, इसमें बेसिकली ये है कि जितना ज़्यादा इसका थीटा होगा उतना ज़्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा थीटा होगा साइन, बिकॉज मेरा ये वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी इज़ यू साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है. ठीक है, साइन थीटा साइन 60 इज़ मोर देन साइन 30 जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा. तो जितना ज़्यादा एंगल होगा उतनी ज़्यादा इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगी यू वाई, जितना ज़्यादा एंगल ऑफ थीटा हो गया. और जितना ज़्यादा वर्टिकल वेलोसिटी होगी उसका टाइम पीरियड उतना ही बढ़ जाएगा. ठीक है, सो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो देखूँ दैट इज़ अ रेशियो कमिंग एज tan थीटा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मेरे को आई नीड टू फाइंड आउट दिस एच हाइट. ठीक है, दिस एच हाइट कैन बी एनीवेयर. दिस एच हाइट आई नीड टू फाइंड आउट दिस एच हाइट. दिस इज एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, तो मेरे को ये वाई कोऑर्डिनेट निकालना है. ठीक है, सो मेरे को पता है, मेरे को अगर ये दे रखा है किसी भी एच हाइट के लिए, इट कैन बी हेयर, इट कैन बी हेयर, एट एनी पॉइंट इट कैन बी, बट वी आर अज्यूमिंग एट पॉइंट पी दिस इज़ माई एच हाइट. यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे पता है इट इज़ टेकिंग माई T1 टाइम, और यहाँ से यहाँ तक मुझे पता है इट इज़ टेकिंग T2 टाइम. ठीक है, टाइम यहाँ पे दोनों चेंज होगा. इट इज़ नॉट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट विल बी एट अ पॉइंट वेयर इट्स वर्टिकल वेलोसिटी गेट जीरो. ठीक है, जो भी टर्निंग पॉइंट होता है, दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ एसेंट होता है, यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ डिसेंट. बट यहाँ पे जो मेरे को टाइम पीरियड दे रखा है, दिस टाइम पीरियड इज़ T1 एंड दिस टाइम पीरियड इज़ T2. ठीक है, ये दोनों टाइम पीरियड दे रखे हैं. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, बट आई नो कि T1 प्लस T2 इज़ नथिंग बट माई टाइम ऑफ फ्लाइट T. ठीक है, सो आई विल जस्ट पुट T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी. इट इज़ नथिंग बट द टाइम ऑफ फ्लाइट. यहाँ से मेरी u साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा, दैट इज़ g इधर ले जाऊँगा एंड आई विल डिवाइड बाई 2. सो दिस विल बी माई u साइन थीटा. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मेरी आ गई यहाँ से. ठीक है, अब मेरे को h और h में और वर्टिकल वेलोसिटी में रिलेशनशिप पता है, मैं कैसे निकालूंगा. h इज इक्वल टू u साइन थीटा T1. यहाँ से यहाँ तक मेरे को टाइम लगा u साइन थीटा T1. यहाँ से y कितना हो गया, दिस इज़ y. ठीक है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u साइन थीटा इंटू T1 माइनस 1/2, this is g downwards 1/2 gt1 square. ठीक है, I put the value of u sin theta here and I got
h इज इक्वल टू जी टाइम्स t1 इंटू t2/2. ओके, अगर मेरे को यहाँ से इस पॉइंट की हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट, we can take it out from this manner. This height will be h is equal to 2 times of t1 is time of ascent, time of descent by 2. ठीक है, ये देखते हैं 2 इंटू g t1 टाइम ऑफ ascent, टाइम ऑफ descent by 2, बिकॉज मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा टाइम ऑफ ascent, टाइम ऑफ descent होगा. यहाँ पे होगा मेरा g इंटू टाइम ऑफ ascent कितना होगा, 2u sin थीटा, u sin थीटा by g इंटू u sin थीटा सेम होगा बाई जी इंटू 1/2. ठीक है, यहाँ से g से g कैंसिल, तो ये वैल्यू होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. तो ये जो मैक्सिमम हाइट, ये वाली जो हाइट होगी एट दिस पॉइंट, दिस इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए मैक्सिमम हाइट. वी कैन टेक इट आउट in another manner which we are going to see in the next slide के maximum height निकालने का. there's another way, but this is also a way from where we can take out any height. किसी भी height को हमें निकालना है with the time period दे रखा है, उसका time of वहाँ तक पहुँचने का. सपोज ये वाली height है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे को time period दे रखा है t1, and यहाँ से यहाँ तक मेरे को time period दे रखा है, this is t2. ठीक है, अगर ये time period दे रखा है, need to find out this height. This height will be nothing but g t1 t2/2. okay, t1 t2 के रिलेशनशिप में आई कैन टेक आउट द वैल्यू ऑफ हाइट. ओके, सो इट्स क्लियर. सो आवर टाइम ऑफ फ्लाइट वी हैव सीन इट. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट हम लोगों ने देख ली. दिस इज माय मैक्सिमम हाइट एंड वी हैव कैलकुलेटेड इट फ्रॉम t1 इन t2. अब हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, दिस इज माय मैक्सिमम हाइट. सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट के लिए मुझे पता है मैक्सिमम हाइट कब रीच करेगी, व्हेन माय वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मेरी कितनी थी, u sin थीटा. इस पे वर्टिकल पुश लग रहा है फ्रॉम द g, सो इट विल गोइंग टू गेट रिटार्ड. धीरे धीरे u sin थीटा कम होते होते इट विल गेट टू जीरो. ठीक है, मुझे निकालना है वो जीरो. मैक्सिमम हाइट होगी ये, एट मैक्सिमम हाइट इट विल गेट जीरो. So I know the third, I'll apply the third equation of kinematics. Vy square is equal to uy square minus 2g h max. यहाँ पे this will get zero. Initial velocity is my u square sin square theta. U square यहाँ पे u sin theta होता है, u square sin square theta divided by 2g. I've got my maximum height. Okay, u square sin square theta by 2g, जो कि हमारा सेम जब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, we applied this also, we have got the same value. Okay, u square h max आ गया मेरा u square sin square theta by 2g. This is my h max. Okay, so h max में भी हमने देखा यहाँ पे it is only uy vertical component of the velocity which is contributing. Okay, only vertical component, because it makes sense क्योंकि हमारा vertical velocity है that is u sin theta which is going to zero and which is then coming down. It is only the vertical velocity only which is giving me the height. Okay, so uy u sin theta by u square 2g. ठीक है, so height and the time of flight depend on the vertical velocity, and height is directly proportional to uy square. जितनी ज़्यादा vertical height होगी उतनी ज़्यादा मेरी height होगी. ठीक है, vertical speed, vertical velocity होगी और speed होगी vertical, उतनी ज़्यादा मेरी height होगी, उसका स्क्वायर, और time period is directly proportional to uy. ओके, सो हमने देखा कि अगर मेरा जितना एंगल बड़ा होगा, ये एंगल जितना मेरा एंगल बड़ा होगा, सपोज ये एंगल 1 है, थीटा 1. नाउ दिस इज माय थीटा 2. थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, सो थीटा 2 बड़ा होगा तो साइन थीटा बड़ा होगा. साइन, इफ थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, देन साइन थीटा 2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 1. साइन थीटा 2 बड़ा होगा तो दैट मीन्स uy is greater, uy for this theta 2 is greater than uy for this theta 1. so uy बड़ा है तो इसकी हाइट भी ज़्यादा होगी थीटा 2 के लिए, और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा. ठीक है, इसका हाइट भी ज़्यादा होगी और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा. सो जस्ट मेजर थिंग दैट यू रिमेंबर हेयर इज कि हाइट एंड टाइम इज बोथ माई केवल वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कंट्रीब्यूटिंग द हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट. और हाइट जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू uy स्क्वायर, उसके वर्टिकल का स्क्वायर के साथ रिलेशन है, एंड देयर uy. ओके, so now special cases when we throw like this goes to zero and come back like that. We have seen it motion in 1D. That is a special case of projectile that we have seen. At theta is equal to 90 degree मेरा projectile है,
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे I put the value theta here 90 degree, this is 1, so my value is u square by 2g. Okay, this is the case. ऊपर फेंका, goes up to here, stop here and come back here. Okay, so u square by 2g is my maximum height. Okay, when I throw at theta is equal to 90 degree. ठीक है, जितना कम एंगल पे फेंकूंगा उतनी कम हाइट होगी, जितना ज़्यादा एंगल पे फेंकूंगा उतनी ज़्यादा हाइट होगी, राइट. मैक्सिमम हाइट आएगी मेरी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे. नाउ विल सी द रिलेशनशिप इन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में देखते हैं. दिस इज अगेन माई साइन थीटा. साइन थीटा का अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा हमने देखा था क्या होता है, इट इज़ कॉस थीटा. कॉस थीटा. नाउ वी पुट द वैल्यू के H1 इज़ फॉर थीटा एंड H2 इज़ फॉर 90 माइनस थीटा, इट विल बिकम कॉस थीटा. एंड दोनों के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा मेरा tan स्क्वायर थीटा. ओके, दोनों के बीच में H1 और H2 के बीच में रिलेशनशिप इज tan स्क्वायर थीटा और T1 और T2 के बीच में रिलेशनशिप इज tan थीटा. ओके, दिस इज माय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप. अगर इनिशियल एंगल छोटा है मेरा, अगर इनिशियल एंगल 30 है और फाइनल एंगल मेरा 60 डिग्री है, तो इसकी हाइट इज़ मोर देन दिस. इसका टाइम पीरियड इज़ ऑल्सो मोर देन दिस. ओके, 30 से ज़्यादा होगा इसका टाइम पीरियड और इसकी हाइट भी ज़्यादा होगी इससे. ओके, और उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा दैट वेरीज एज tan स्क्वायर थीटा. ओके, उसका जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर आएगा दैट वेरीज विद tan स्क्वायर थीटा. सो यहाँ पे मेरे को दो प्रोजेक्टाइल दे रखी हैं. वन प्रोजेक्टाइल इज़ दिस, सेकेंड प्रोजेक्टाइल इज़ दिस. सो यहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल से क्या डिड्यूस कर पाता हूँ मैं, क्या कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि दोनों की हाइट सेम है. हाइट सेम है इसका मतलब दोनों के दे आर थ्रोन एट डिफरेंट एंगल. ठीक है, डिफरेंट एंगल पे थ्रो हो रहा है एंड दोनों की हाइट सेम है. दैट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ u1 आई कैन टेक और u2. ठीक है, सो u2 इज़ ग्रेटर देन u1. u2 is greater than u1 because I know u1 sin theta 1 is equal to u2 sin theta 2. ये suppose theta 2 है, this is my theta 1, 1 के साथ theta 1 है, तो u1 sin theta 1 is equal to u1. ये वैल्यू मेरी बड़ी है. ठीक है, this is big, so u1 is u1. this is sin theta 1 is greater than sin theta 2. ठीक है, so then u1 is less than u2. ठीक है, u1 is less than u2. पहली तो ये डिड्यूस कर ली मैंने, u1 की स्पीड u2 से कम है, u2 की ज़्यादा स्पीड है. ठीक है, सो u2 आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल स्पीड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल. u2 ओवरऑल इज ग्रेटर देन u1. और दूसरा क्या है मेरा कि दोनों की हाइट सेम है, सो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ui विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम. सो ui सेम है, सो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा. t1 इज इक्वल टू t2. ठीक है, सो आ गया मेरा h1 इज इक्वल टू h2. दैट मीन्स u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा 2, जिससे मेरा निकल के आगे डिड्यूस हुआ t1 इज इक्वल टू t2. दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है, बट यहाँ से मेरे को पता लगा कि साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 2. ओके, दैट मीन्स u2 इज ग्रेटर देन u1. दैट इज व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम दिस graph of projectile, from these two trajectories of projectile, right? So next we'll move on, we'll see horizontal range. now हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया, हमने मैक्सिमम हाइट देख लिया, अब हम देखेंगे horizontal range. So horizontal range is my this thing. If I throw a projectile here, okay, so this is my horizontal range. Okay, this is my horizontal range के पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में how much is the horizontal distance it covered. Okay, so horizontal range is nothing but your this one u cos theta, this u cos theta, और यहाँ पे कोई भी इसको ड्रैग नहीं मिल रहा, so it will go with same velocity u cos theta continuously. यहाँ से यहाँ तक it will be having the same velocity that we have seen in yesterday's class also, कि horizontally it is a uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन में कोई इसको अपोज नहीं मिल रहा, कोई ड्रैग नहीं मिल रहा, कोई पुश नहीं मिल रहा, नीदर इन अलॉन्ग द साइड नॉर अपोजिट साइड. सो इट विल कीप ऑन मूविंग विद सेम यू कॉस थीटा से मूव करता रहेगा. इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फॉर द होल प्रोजेक्टाइल विल बी सेम, जो कि इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, दैट इज यू कॉस थीटा. ओके, सो नाउ फॉर दिस रेंज आई विल डू यू कॉस थीटा. रेंज क्या हो, दिस रेंज विल बी यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. ए इज़ माई 0, कोई ड्रैग नहीं है, सो रेंज इज़ माई यू टी. रेंज कितनी हो गई, यू इज़ यू कॉस थीटा इंटू
t इज़ माई टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना मेरा यहाँ से यहाँ तक में टाइम लगा, दिस इज़ माई टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, सो हेयर ऑल्सो वी हैव डन रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, यू एक्स क्या हो गया, यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट वी हैव कैलकुलेटेड यू साइन थीटा इंटू जी. सो इसको मैंने सॉल्व किया एंड आई गॉट रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर and u square sin 2 theta by this 2 sin theta cos theta is my sin 2 theta u square sin 2 theta by g. This is my range. Okay, so h is my u square sin square theta by 2g, range is my u square sin 2 theta by g and time period is my 2u sin theta by g. तो यहाँ पे जो मेरी रेंज है that is depending on ux also and uy also, both. It is not just ui, but this is depending on vertical, this is also depending on vertical velocity, initial vertical velocity. Range is varying on ux also and ui also. ux का component मेरा यहाँ से आ गया और ui का component मेरा ये आ गया. So range is my 2 times of ux into ui. ठीक है, both the components is coming in the range. Okay, so जब both the components आ रहे हैं range में, so we have to take the angle which will cater both sin theta also, which will cater vertical side also. This is my vertical side is u sin theta और u cos theta. ठीक है, दोनों को जो मैक्सिमाइज करेगा that is nothing but my 45 डिग्री. और here also you can see कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, when my angle this sin 2 theta is, रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब sin 2 theta is equal to 90 डिग्री. ठीक है, then 2 theta is equal to 45 डिग्री or theta is equal to 45 degree. So at theta is equal to 45 degree, I'll get the maximum range. ठीक है, because theta is equal to 45 पे ही मेरी ux और uy की वैल्यू जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है that will maximize. Otherwise अगर मैं कोई भी और एंगल लूँगा 30 डिग्री लूँगा तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है that will not maximize, ux और uy का, that will maximize only at angle 45 डिग्री. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए देख लेते हैं कि हाउ द रेंज इज वेरिंग विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सपोज माई एंगल इज थीटा एंड एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो उसके लिए रेंज हाउ इट इज़ वेरिंग एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड द रेंज. ठीक है, सो मैंने देखा था लास्ट टाइम कि T1 इज़ माई 2u साइन थीटा बाई जी और T2 विल बी 2u कॉस थीटा बाई जी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, इफ़ आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम आई गेट दिस रिलेशनशिप 2r बाई जी. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशनशिप कि फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर मेरा एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया मैंने 30 से, एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया मैंने 60 से. ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल किया 30 डिग्री से, एक प्रोजेक्टाइल शो किया था 60 डिग्री से, दिस इज माई 60 डिग्री. तो इन दोनों के बीच में अगर इसका टाइम पीरियड मेरा T1 है, इसका टाइम पीरियड मेरा T2 है, सो T1 इंटू T2 के बीच में जो रिलेशन आएगा 2r बाई जी, जो इन दोनों का रेंज है, रेंज विल बी सेम फॉर बोथ दैट वी आर गोइंग टू सी here in this section. So range 2r by 2 times of r by g, that is my multiplication of T1 into T2. ठीक है, इन दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लिकेशन 2r by g आएगा. ठीक है, so if you do this multiplication also you get 2 sin theta cos theta की वैल्यू मेरी हो जाएगी sin 2 theta, this will be u square, then u square sin 2 theta into 2 by g. That will be my टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लिकेशन व्हेन आई कंसीडर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज देखते हैं. रेंज इज आर इज माई नॉर्मल रेंज फॉर साइन थीटा. अब कॉस थीटा के लिए देखें, अब यहाँ पे मैंने 90 माइनस थीटा पुट कर दिया. ठीक है, इस पोजीशन पे थीटा के लिए तो ये वाली रेंज हो गई मेरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जगह मैंने थीटा की जगह आई जस्ट पुट 90 माइनस थीटा, इसको अंदर ले गया, इट इज़ बिकम साइन 180 माइनस थीटा. अगेन वी हैव सीन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, हमने रिडक्शन फार्मूलाज में देखा था कि 180 माइनस थीटा विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, सो वैल्यू विल कम आउट पॉजिटिव. प्लस 180 में देयर विल नॉट द सेम फंक्शन विल बी देयर, सो साइन थीटा सेम फंक्शन रहेगा एंड दिस विल बी पॉजिटिव. सो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी साइन 2 थीटा 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट माई साइन 2 थीटा ओनली. ठीक है, सो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी दैट मीन्स आर. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए माई रेंज इज सेम. ठीक है, सो अगर मैं 30 डिग्री से फेंकूंगा और 60 डिग्री से फेंकूंगा तो बोथ आर हैविंग द सेम रेंज, बट दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा बिकॉज जो मैं 30 डिग्री से फेंक रहा हूँ दैट इज़ हैविंग लेसर वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगी यू साइन 30 की वैल्यू साइन 30 इज़ लेस देन साइन 60 जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यू साइन 60. ज़्यादा होगा दैट मीन्स इसकी हाइट भी ज़्यादा होगी h2 और इसकी h1, सो h2
is greater than h1. Same way, time of flight of this is greater than time of flight of t2 is greater than t1. Okay, because they both depend on the vertical velocity, or vertical velocity is directly proportional to the sine of angle. ओके, सो रेंज दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हमने देखा सेम आ गई. सो रेंज मेरी 30-60 पे भी सेम है, और एनी अदर एंगल 15-75 पे भी सेम है, 50-40 पे भी सेम है, 45 पे it is we are going to get the maximum. From here we have seen कि when I put the theta angle 45, it will get sine 2 theta will be sine 90 degree, and I got the maximum range as u square by g, right? So next we'll move on. So this is an interpretation of complementary angle sin theta and sin 90 minus theta. Here it will give you the same range, complementary angle, but different maximum height, different t, and different trajectory will also be different. Let's see. Okay, this is my sin 15 degree and this is my sin 75 degree. ठीक है, दोनों की range same है. We have got same range for both of this. Height is different. दोनों की हाइट एच मैक्स इज डिफरेंट, एंड इसके लिए टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा, इसके लिए टाइम पीरियड कम लगेगा. सो दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है, दोनों के टाइम पीरियड भी डिफरेंट है, सॉरी. और दोनों की ट्रेजेक्ट्री, इफ़ यू सी दिस ट्रेजेक्ट्री एंड दिस ट्रेजेक्ट्री, दोनों की ट्रेजेक्ट्री भी डिफरेंट है. ओके, सो सेम आर सेम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, बट देयर विल बी डिफरेंट एच मैक्स, डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री. सेम अगर मैं 45, दिस इज़ माई, सॉरी, अगर मैं 55, दिस इज माई 55 एंड दिस इज माई 35. सेम अगर मैं देखूँ 35 और 55 के लिए, व्हाट आई हैव गॉट इट, डिफरेंट हाइट है दोनों की, डिफरेंट मैक्सिमम हाइट है दोनों की, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डिफरेंट, बट देयर इज अ सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, और दोनों की ट्रेजेक्ट्रीज इज ऑल्सो डिफरेंट, बोथ इन दोनों की ट्रेजेक्ट्रीज इज ऑल्सो डिफरेंट. ओके, सो दैट इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड वी हैव सीन मैक्सिमम जो रेंज निकल के आ रही है दैट इज कमिंग आउट एट 45 डिग्री. दिस इज 45 डिग्री, मैक्सिमम रेंज इज कमिंग आउट एट 45 डिग्री. This we have seen in the last slide also कि maximum range के लिए मेरे को क्या चाहिए, this value should be 90 degree, because sin की value maximum क्या होती है 1, and that is at 90 degree. And now if I have to make it 90 degree, that means 2 theta should be 90 degree and theta should be 45 degree. ठीक है, so 45 degree पे I have got the maximum range. Okay, or you can do it by differentiation. You do the differentiation with respect to theta, range का करोगे, you got this to use, and you put it 0, cos to theta 0 आ गया, and theta cos to theta 0 means कि 2 theta is my 90 degree, so theta again is 45 degree. So r max कितना निकल के आया मेरा यहाँ से, r max is u square by g, and h max कितना था मेरा, अगर मैं h max देखूँ, if I throw it at 90 degree, तो u square by 2g is my h max. Okay, but they both are for different angle. This is for 45 degree and h max जो आता है मेरा that is for 90 degree. Okay, at a different angle आता है. अगर same angle पे देखेंगे, we'll see कि how on the same angle the relationship will come and how on different angle the relationship will come. Okay, so यहाँ पे देखते हैं, आर मैक्स मेरा आता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे. ठीक है, अब हम आर मैक्स और एच के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे कि जब मेरा रेंज मैक्सिमम है तो उस पर मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर रहा है, वो कितने टाइम्स ऑफ क्या प्रोपोर्शनलिटी है विद रेंज, और कितने टाइम्स ऑफ रेंज वो हाइट अटेन कर रहा है एट सर्टेन एंगल. ठीक है, और वो एंगल फॉर सर्टेन एंगल भी ले सकते हैं, और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे आई हैव गॉट माई मैक्सिमम रेंज. ठीक है, थीटा इज 45 डिग्री पे आई हैव गॉट माई मैक्सिमम रेंज. मैक्सिमम रेंज इज माई u square by g, that we have seen it here. This is my u square by g at maximum at theta is equal to 45 degree. Now put this theta 45 degree here in sin square theta, that is going to give you h is equal, that is going to give you h, that is u square by 4g. ठीक है, u square by 4g. यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ गई, this is my r, h की वैल्यू आ गई मेरी r is equal to h is equal to r max by 4. ठीक है, so r max is at 45 डिग्री. अगर मैं 45 डिग्री पे सपोज ये वाला ले, अगर ये मैं 45 डिग्री पे थ्रो कर रहा हूँ, सो दिस h would be r max by 4. Okay, this is the relationship, and there is also a relationship between this h and this r. There is also a relationship between this h and r that we are going to see, but here is a special case कि जो हम 45 डिग्री के लिए कंसिडर कर रहे हैं. For this 45 डिग्री this is my r max. इस r max पे 45 डिग्री पे my h जो है h है, और इसके साथ ये जो h की वैल्यू आएगी दिस इज r max by 4. ये रिलेशनशिप है. और सेकेंड रिलेशनशिप जो हम निकालेंगे अब, दैट इज़ किसी भी एंगल पे ये h है और ये r है,
इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, एच और आर में क्या रिलेशनशिप, दैट वी आर गोइंग टू सी इट नाउ. So now for any angle theta, if I take this angle, this 65 degree, for any angle theta, my h and my r के बीच में क्या relation है, that is coming from here. So for any angle theta, r is my u square sin 2 theta by g, h is my u square sin square theta by 2g, right? Now I divide this and I divide r by h and I've got the value 4 cot theta. So relationship has come 4 cot theta. अगर मैं theta की value 45 रख दूँ, that we have seen it here. It's a special case. Theta की value मैंने 45 रखी, then it is r is equal to 4 times of h. ठीक है, यहाँ पे देखो r is equal to 4 इधर आ गया, 4 times of h. अगर थीटा इज में 45 डिग्री. और जनरल फॉर एनी एंगल थीटा जो r और h में रिलेशनशिप होता है, फॉर एनी एंगल थीटा इज r बाई एच इज इक्वल टू 4 कॉट थीटा. ठीक है, फॉर एनी रिलेशनशिप. सो अगर मेरे को r दे रखा है, दैट इज योर एन टाइम ऑफ h. r और h में रिलेशनशिप दे रखा है आपको कि r इज सपोज 100 एंड h इज सपोज 50 एंड यू नीड टू फाइंड आउट you need to find out the theta. You just put the value here, 100 divided by 50 is equal to 4 cot theta. यहाँ से you can get your cot theta is equal to 1/2. Okay, this way you can get the angle. अगर आपको r और h में relationship दे रखा है, अगर आपको range और height में relationship दे रखा है, you can get the angle कि किस angle पे वो फेंका गया होगा, this to get this r value and to get this h value. Okay, so this is how you can calculate theta from here. Okay, this is how you can calculate theta from here. नेक्स्ट देखते हैं कि मेरे को दे रखा है एच मैक्स, मेरे को पता है ऑन एच मैक्स सपोज एक पार्टिकल है विच वी आर थ्रोइंग एंड विच इज थ्रोइंग विद वेलोसिटी u, तो उसका जो एच मैक्स इट इज़ गोइंग टू गेट एच मैक्स इट इज एट h max is basically it will come on 90 degree, so maximum value will come on u square by 2g is my h max. ठीक है, h max ये given है. ठीक है, इतनी हाइट वो अचीव कर रहा है when I'm throwing it at 90 degree. so यहाँ पे मेरी I'll take out the value of u from here, u square. मेरे को r max की वैल्यू चाहिए in terms of h max. ठीक है, r max मतलब the theta is different here, बट आई जस्ट नीड कि अगर मैं किसी पार्टिकल को टू गेट इट्स एच मैक्स और सपोज ये एच मैक्स के लिए 90 डिग्री पे थ्रो करता हूँ और आर मैक्स के लिए 45 डिग्री पे थ्रो करता हूँ. ठीक है, सो आर मैक्स और एच मैक्स के बीच में मेरा क्या रिलेशन है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम हियर. ठीक है, सो मैंने एक पार्टिकल को फेंका, दैट टू गेट एच मैक्स आई थ्रो इट एट 90 डिग्री पे फेंका. सो एच मैक्स मेरा कितना आ गया, इट इज़ यू स्क्वायर बाई 2g. ठीक है, अब सेम वेलोसिटी से आई थ्रो द पार्टिकल, आई थ्रो द एनी ऑब्जेक्ट एट 45 डिग्री टू गेट द आर मैक्स. तो यहाँ पे मेरा दिस इज माई एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g. एच मैक्स मेरे को गिवन है, यहाँ पे एच मैक्स और आर मैक्स में रिलेशनशिप चाहिए, तो आई टेक द एच मैक्स. तो यू स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली 2g एच मैक्स. ठीक है, यहाँ से 2g एच मैक्स मेरी वैल्यू होगी. नाउ आर मैक्स मुझे पता है, आर मैक्स इज एट 45 डिग्री. It is what, u square by g. Now I put u square की value here, so I'll get this value here. So u square की value होगी मेरी h into 2g by g. g से g cancel, so h max comes out to be r max, 2 times of r max. So इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं इस पार्टिकल की इनिशियल स्पीड मेरी u है, ये मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर सकता है, मैक्सिमम हाइट ये जो अचीव करेगा, सपोज इफ आई थ्रो इट एट 90 डिग्री देन ओनली इट विल गेट द मैक्सिमम हाइट. सो मैक्सिमम हाइट अगर ये अचीव कर रहा है 100, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अगर ये अचीव कर रहा है 100. नाउ सेम पार्टिकल को अगर मैं u वेलोसिटी से फेंकूंगा, इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, इसको मेरे को 45 डिग्री से फेंकना पड़ेगा फॉर द मैक्सिमम रेंज, एंड मैक्सिमम रेंज विल बी दिस आर मैक्स. नाउ दिस आर मैक्स विल बी नथिंग बट 2 times ऑफ दिस एच मैक्स. दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन इज कन्विंग. ठीक है, is what this equation is conveying. For any projectile, if you are throwing at initial velocity u पे अगर आप थ्रो कर रहे हैं, तो उसकी मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच कि जब उसको मैं वर्टिकली थ्रो करूँ, ठीक है, वर्टिकली थ्रो किया एंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच हेयर. तो जो इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होगी मेरी, सपोज दिस इज 100. नाउ आई वांटेड टू नो कि हाउ दिस मैक्सिमम हाइट इज रिलेटेड विद माई मैक्सिमम रेंज.
और सेम पार्टिकल को अगर मैं u वेलोसिटी से 45 डिग्री पे थ्रो करूँ, 45 डिग्री पे, इट विल गिव मी रेंज मैक्स. तो यहाँ पे जो रेंज मैक्स आएगी इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स. सो दिस इज़ 200. ओके राइट. अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी जस्ट एक फैक्टर दे रखा है, कोई वैल्यू नहीं दे रखी, सो यू कैन गेट द रिलेशनशिप बिटवीन आर मैक्स एंड एच मैक्स इन दिस मैनर. राइट. नेक्स्ट हमने देखा था अगर मेरे को आर और एच में कुछ रिलेशनशिप दे रखा है मैक्सिमम हाइट एंड रेंज के बीच में, तो वी कैन फिगर आउट द एंगल बिटवीन देम फ्रॉम दिस इक्वेशन. ठीक है, वी कैन फिगर आउट द एंगल. सो सेम वे r is varying with h like this, so I can figure out the angle. This is my angle tan alpha, or you can put the value, or you can put r as 2, you can put r as say u square sine 2 alpha by g. ठीक है, यहाँ पे sin 2 alpha को you open up 2 sin alpha cos alpha is equal to 2 by root 3 times u square sin square alpha by 2g. Cancel the terms and you get the value of tan alpha is 2 by root 3. ठीक है. So नेक्स्ट विल सी फ्यू क्वेश्चंस, कुछ एक क्वेश्चंस और देखते हैं इस पे प्रोजेक्टाइल मोशंस पे, जस्ट टू स्ट्रेंथन आवर कंसेप्ट. सो एक गन है जो कि मेरे से पूछा है कि इट हैज़ टू हिट दिस टारगेट पी, इट हैज़ टू हिट दिस टारगेट. तो किस एंगल पे हिट करे कि इट इज़ गोइंग टू डायरेक्टली हिट द टारगेट. ओके. सो बुलेट अगर मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे डाल रहा हूँ, सो अगर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा नीचे साइड, तो इट विल गो डायरेक्टली इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल हिट हेयर. बट बिकॉज देयर इज़ अ ग्रेविटी, सो ये कंटिन्यूस पुश इसको मिलेगा एंड इट विल गो लाइक दिस. द जो ट्रेजेक्ट्री होगी इट विल गो लाइक दिस एंड इट्स गोइंग टू हिट द टारगेट. मुझे वो एंगल बताना है, किस एंगल पे आई जस्ट कीप दिस बैरल ऑफ द गन कि ताकि इट इज़ गोइंग टू हिट द टारगेट हेयर. ओके ओके क्लियर. अगर ये अगेन द ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कोई वर्टिकल पुश नहीं है, सो इट विल गो एंड डायरेक्टली हिट हेयर. बट आई नो देयर इज़ अ ग्रेविटी, इट इज़ गोइंग टू पुश इट हेयर, सो आई नीड टू नो दिस वैल्यू ताकि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. मुझे दे रखी है रेंज 30 डिग्री. ओके. फ्रॉम द रेंज 30 मीटर, फ्रॉम द रेंज आई कैन गेट रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. यू स्क्वायर की वैल्यू मेरे को दे रखी है 100 एंड आई कैलकुलेट साइन 2 थीटा इज़ 0.03. दिस इज़ वेरी लेस. सो मुझे पता है फॉर द स्मॉल एंगल माई साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 theta is equal to sin theta is equal to theta for small angle. So I put sin 2 theta 2 theta and I've got this 0.03. theta की वैल्यू आ गई मेरी 0.0015. I've got the value of theta. This is my theta. Okay. Now tan theta is my h by this. I put the value of h and I got okay this कितने this angle किस ये height पे अगर मेरा gravitational पुश नहीं है, तो एट व्हाट हाइट इट इज गोइंग टू टारगेट फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट. सो इट इज़ माई एच की वैल्यू कैसे निकलेगी, एच बाई 30 इज इक्वल टू 10 थीटा एंड आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस 30 बाई दिस एंगल एंड आई गॉट द वैल्यू. ओके. सो tan थीटा के लिए भी वही होता है, tan थीटा is equal to theta for small angle. Okay, this comes out to be 45 centimeter. Okay, so this is in meter, so this is very small, this is 45 centimeter. Okay, this is not big, this is 45 this is 45 centimeter. This is only 45 centimeter. This is not much. Okay, this vertical is not much. This is centimeter and this is meter. Okay, next we'll move on. We'll see certain graphs and we'll deduce certain things from those graphs. We'll analyze those graphs and we'll deduce. So यहाँ पे मेरे को दे रखे है तीनों प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल हाइट सेम है. दैट मीन्स इन दोनों का u y इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट इज़ सेम. दैट मीन्स u1 cos theta 1 u1 sin theta 1 is equal to u2 sin theta 2 is equal to u3 sin theta 3. और मुझे पता है यहाँ पे theta 1 is greater than theta 2 is greater than theta 3. That means sin theta 1 is greater than sin theta 2 is greater than sin theta 3. That means u3 is maximum. u3 is greater than u2 is greater than u1. This is my relation. u3 जो है, this u3 की जो speed है that is maximum, then u2 then u1. Okay, it's clear. Now next thing is कि इन तीनों की height same है. That means इनकी vertical component of their initial speed, initial velocity is same.
u/2, तो तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा, तीनों प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट विल ऑल्सो बी सेम, t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3, एंड नाउ माई रेंज इज नथिंग बट u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब रेंज में देखूँ, रेंज फॉर द 3 इज बिगर, सो r3 इज ग्रेटर देन r2 इज ग्रेटर देन r1, सो यहाँ पे आई हैव गॉट, तो इसका जो रेंज, इसकी जो रेंज होगी दैट इज u3 cos थीटा 3 is greater than u2 cos theta 2 is greater than u2 cos theta 1, और from this angle also we can get to know कि ये एंगल सबसे छोटा है, cos theta is कि जितना थीटा की वैल्यू छोटी होगी उतना बड़ा उसका cos theta होगा। So for small theta we have got big cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे जितना छोटा होगा, सो सबसे छोटा कितना है, ये थीटा 3 इज द स्मॉलेस्ट वन, सो इसका जो u3 cos थीटा 3, तो cos थीटा 3 इज द बिगेस्ट वन, एंड u3 itself is maximum in this projectile, we have seen it from here, from the vertical h से हमारा ऑलरेडी ही आ गया, u3 is greater than u2 is greater than u1, this already has come, plus now my cos theta 3 is greater than cos theta 2 is greater than cos theta 1, so obviously my range of projectile, range of 3 is greater than 2 is greater than 1, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मेरे को दे रहा है कि मेरे को बताना है कि किसकी मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी है, किसकी, कौन से 1 2 3 4 में से किसकी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 and 2, 1 and 2 की क्या है, यहाँ पे सेम हाइट है, दैट मीन्स इनकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों का हाइट सेम है, दैट मीन्स u y दोनों का सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका थीटा ज़्यादा है, दैट मीन्स इसका साइन थीटा भी ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इसका u1 इज लेस देन u2, ठीक है। यहाँ से रिलेशन आ गया मेरा u2 इज ग्रेटर देन u1, ठीक है, पहला रिलेशन आ गया u2 इज ग्रेटर देन u1। सेकेंड देखते हैं अब मेरा 2 and 4 के बीच में, दिस इज 4, दिस इज 2, ओके। सो यहाँ पे मेरे को दे रखा है u2 and u4 में क्या है, दोनों का रेंज सेम है, ठीक है, u2 and u4 में दोनों का रेंज सेम है। नाउ रेंज सेम में क्या होता है, जिसका स्मॉल एंगल होगा, सो रेंज सेम का क्या हो गया, u स्क्वायर, रेंज क्या होती है मेरी, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, ठीक है, दिस इज माई रेंज। सो g, आई विल नॉट टेक द g, आई विल टेक u, सो फॉर 2 and 4 range is same, u2 square, so theta is my given, u2 is 45 degree and u4 is 30 degree, ठीक है। So 45 into 2 is 90 degree and u4 is 60 degree. If I open this, I've got a relationship as u2 square is equal to u4 square root 3 by 2, यहाँ से मेरे जो निकल के आ रहा है u4 is greater than u2, okay। यहाँ से मेरे को पता लग गया u4 is greater than u2, एंड यहाँ से पता लगा u2 is greater than u1, सो अभी तक u4 is the maximum one, ठीक है। अब u4, अब मेरे को u और कौन सा रिलेशन निकाल सकता हूँ मैं, आई कैन टेक आउट द रिलेशन बिटवीन u2 and u3, u2 बिकॉज बोथ हैव बीन थ्रोन ऑन द सेम एंगल, दिस 45 डिग्री, u2 and u3 के बीच में रिलेशनशिप देखता हूँ कि दोनों सेम एंगल से फेंके गए हैं, बट रेंज 45 डिग्री से, बट u2 की ज़्यादा है, दैट मीन्स u2 की इनिशियल cos थीटा कंपोनेंट u2 का, दोनों का u2 cos थीटा इसका ज़्यादा है ना, सॉरी, इन दोनों को सेम एंगल से, सेम थीटा से फेंका गया, दैट मीन्स इसका u2 का रेंज ज़्यादा है, दैट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन u3, ओके। इसकी u2 की रेंज ज़्यादा है ना u3 से, सो दैट मीन्स इसका जो है u2 का u2 इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन u3, ओके। दोनों को 45 डिग्री से थ्रो किया है, ओके। सो मोर रेंज एंड मोर एच फॉर u2, सो इसकी हाइट भी ज़्यादा है, u2 इज़ अचीविंग मोर हाइट ऑल्सो एंड u2 इज़ अचीविंग मोर रेंज ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों अगर मेरा ज़्यादा है, दैट मीन्स इसकी u3 से, और दोनों सेम एंगल पे फेंके गए हैं 45 पे, दैट मीन्स u2 का जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ मोर देन u3, ओके। दिस इज़ द डिडक्शन वी हैव गॉट इट फ्रॉम दीज टू, सो ओके। सो पहले हमने 1 और 2 से क्या डिड्यूस किया,
1 एंड 2 से दोनों की हाइट सेम है, बट u1 का एंगल ज़्यादा है, दैट मीन्स u1 का एंगल ज़्यादा है, दैट मीन्स u1 की स्पीड u2 से कम होगी, तो u2 इज़ ग्रेटर देन u1 आ गया मेरा यहाँ पे। फिर दूसरे केस में मैंने देखा u4 और u2 के बीच में, u4 और u2 के बीच में मैंने देखा आई अप्लाइड R2 and R2 is equal to R4, and I put the value of U2 and U4 and sin theta. I put the value here. After putting the value, sin 2 theta, cos 2 theta, after putting these values, I've got the relationship. I've got U4 I've got this relationship, U2 square is equal to U4 into root 3 by 2, that is sin 60, ठीक है। and U4 की वैल्यू यहाँ से after seeing this I could able to deduce U4 is greater than U2, ठीक है, because this value will be less than 1, so U4 is greater than U2, okay। अभी मेरे को आ गया U4 is greater than U2 and U2 is greater than U1, that means U4 is अभी तक सबसे बड़ा है, ठीक है। अब देखते हैं, अभी मेरा एक और फैक्टर ओपन है U2 and U3 ओपन है, अभी U3 का रिलेशन नहीं आया, बट मेरे को पता है U3 और U2 दोनों सेम एंगल पे फेंके गए हैं, ठीक है, ये दोनों के सेम एंगल है 45 डिग्री। तो U2 जो है डिस्पाइट थ्रोइंग एट सेम एंगल इज हैविंग मोर हाइट भी इसकी U2 की ज़्यादा है और रेंज भी ज़्यादा है, दैट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी शुड बी मोर, U शुड बी मोर, ओनली देन विद द सेम एंगल इट इज़ गेटिंग मोर रेंज भी इसकी ज़्यादा आ रही है और हाइट भी ज़्यादा आ रही है, तो दैट मीन्स U2 इज़ ग्रेटर देन U3, U2 is greater than U3 and U2 is greater than U1 and U4 is greater than U2, so that means U4 is having the maximum speed here, okay, right। so next we'll move on। यहाँ देखते हैं क्या दे रखा है हमें, यहाँ दे रखा है हमारे को जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये प्रोजेक्टाइल की, सपोज दिस इज माय प्रोजेक्टाइल, ये यहाँ पे दे रखा है दिस इज माय प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है, दिस इज vy वर्टिकल वेलोसिटी का x के साथ और t के साथ है, ठीक है, एट 1/2 सेकेंड पे, सो टाइम ऑफ एसेंट इसका 1/2 हो गया, दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 1/2 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, बिकॉज 1/2 पे 0 हो रही है इसकी वेलोसिटी और एट x इज इक्वल टू 2 0 हो रही है, ठीक है, 4 मेरी रेंज आ जाएगी, बिकॉज सेंटर पे, बिकॉज t/2 पे ही इट अचीव द मैक्सिमम हाइट, सो माई रेंज कम्स आउट टू बी 4। Now let's see, I've been asked to calculate the value of ux, कि कितनी इसकी x कंपोनेंट में velocity है, so यहाँ से मेरा if I see my time of flight is t is equal to 2 times of time of ascent, time of ascent मेरे को दे रखा है ये 1/2, ठीक है, so time of ascent मेरा आ गया 1 यहाँ पे, और ये दे रखा है मेरे को कि वेलोसिटी इसकी 0 कहाँ पे हो रही है, इट इज़ एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 2, और रेंज कितनी है, ये मेरी रेंज का क्या होता है, r इज इक्वल टू ux इंटू t/2, यहाँ से यहाँ तक जाने में t/2 इज़ द टाइम, r कितना दे रखा है 2, ux मेरे को निकालना है, t/2 की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 1/2, दिस इज़ माई t/2 ना, कि वेलोसिटी किस पॉइंट पे 0 हो रही है, टाइम ऑफ एसेंट, सो यहाँ पे मैंने 1/2 डाल दिया, सो ux माई 4, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली ये दे रखा है वेलोसिटी मेरी जो वर्टिकल वेलोसिटी है 1/2 पे 0 हो रही है, 1/2 पे 0 होने का मतलब है मेरा दिस इज माय टाइम ऑफ एसेंट इज नथिंग बट t/2, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का 2, सो t/2 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 1/2 ईयर, ठीक है। इससे मेरा क्या आ रहा है कि मेरा वर्टिकल वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 2 पे 0 हो रही है, दैट मीन्स मेरे को दिस x की वैल्यू दे रखी है, दैट इज एट 2 इट इज़ गेटिंग 0, ओके, एट 2 इट इज़ गेटिंग 0। अब इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ कि माई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला होगा, ये 2 इज इक्वल टू ux टाइम, बिकॉज x प्रोजेक्टाइल के लिए x डायरेक्शन में जो मोशन होता है यूनिफॉर्म होता है, तो 2 इज इक्वल टू जो इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ux इंटू यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड है, टाइम ऑफ एसेंट इज 2 t/2, ठीक है। अब यहाँ से t/2 की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 1/2, एंड आई टेक ux इज इक्वल टू 2 इधर ले गया 4, ओके। नाउ एक रिलेशन है, इसको रिलेशनशिप बता रखी है कि सपोज एक प्रोजेक्टाइल है, वो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम पीरियड t लगता है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आई हैव टू कैलकुलेट दिस टाइम पीरियड, किसी भी टाइम पे यहाँ पे किसी भी वर्टिकल हाइट पे अगर मेरे को देखना है, दिस इज माय वर्टिकल हाइट h, तो
यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका कितना टाइम पीरियड लगेगा। यू कैन डू एनी हाइट, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हाइट लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये सपोज ये भी है, यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, और दिस हाइट इज सपोज h1, so what will be its time। तो you can split this projectile in any part and you need to know a और b के बीच में कितना टाइम पीरियड लगेगा, this time of flight, ठीक है। so we'll take a basic one, एक रैंडम हमने यहाँ से कट कर दिया and we take it a and b, और इसकी we have taken it at a height h, ठीक है। ये कितनी हो गई h minus h, ओके। so I know a से b तक में जाने में इट इज़ माई टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम t लगेगा, और b से b तक जाने में बिकॉज आई नो दिस टाइम सिमेट्री, जितना टाइम इधर लगेगा, जितना टाइम इधर लगेगा, उतना टाइम इधर लगेगा। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं कटूँ, ये दोनों साइड पे टाइम सिमेट्री रहेगी, ठीक है। जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। ये टाइम सिमेट्री की वजह से ही वी गॉट अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैं गया, ठीक है। ये टोटल टाइम इसको t लग रहा है यहाँ पे, सो यहाँ से यहाँ तक में मेरे को t/2 टाइम लगेगा। दिस इज़ माई t/2, ओके। और मेरे को निकालना कितना है, ये टोटल टाइम t, दिस टोटल टाइम निकालना है कितना लगेगा। उसके लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने टाइम ऑफ डिसेंट देख लिया, t/2 लग रहा है मेरा, ठीक है। अब मुझे पता है दिस हाइट इज़ व्हाट, h minus h, बिकॉज दिस h, नो आई जस्ट अप्लाई इट इन द सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। सो दिस इज यहाँ से ड्रॉप, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी इज व्हाट 0, सो यहाँ से इट सीम्स लाइक पार्टिकल इज ड्रॉपिंग फ्रॉम द रेस्ट, सो h minus h, initial velocity is 0 plus 1/2 g, this is t/2, I have taken it half of the time, यहाँ से यहाँ तक हाफ टाइम लगेगा, t/2 स्क्वायर। सो इसको कैलकुलेट करूँगा, सो माई t की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की जो आएगी दैट इज़ 8 टाइम्स h minus h, ये हाइट h minus h इंटू g। सो इट्स ए जनरल रिजल्ट। अगर आप यहाँ से हाइट को कट करेंगे, इफ़ दिस इज़ योर h, सो नाउ हेयर ऑल्सो इट इज़ 8 इंटू h minus h1 ले लिया अगर हम इसे, h minus h1 बाय g, ठीक है। दिस इज़ माई टाइम पीरियड, रूट ऑफ दिस इज माई टाइम पीरियड। तो कहीं से भी आप कट करेंगे, अगर आप यहाँ से कट कर रहे हैं, सो h minus h इज़ योर दिस वन, h minus h, ठीक है। अब इसका मेरे को यहाँ से तक का टाइम पीरियड निकालना है, दैट इज़ योर 8 टाइम्स h minus h बाई g का अंडर रूट, ओके। यहाँ पे मेरे को क्या बोला है कि अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड मेरे को दे रखा है, टाइम पीरियड b to c, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड a to d, ठीक है। सो अब इस केस में विल डू द टाइम पीरियड ऑफ a to d मेरे को पता है, दिस इज सपोज दिस इज माई h1 हाइट एंड दिस इज माई h2 हाइट, दिस आई नो। यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया अभी लास्ट में, t/ad स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दिस हाइट विल बी h minus h1 बाई g, सेम वे टी टाइम bc के बीच में मेरा कितना आएगा दिस, सो ये हाइट कितनी होगी h minus h2, ठीक है, h minus h2 बाई g। अब इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन करूँगा, आई विल गेट दिस, इन दोनों का दिस h1 minus h2, इन दोनों के बीच की ये वाली, सो अब रिलेशन आ गया h2 minus h1 के बीच में, ठीक है। अगर इन दोनों को मैंने माइनस किया, टाइम ad स्क्वायर माइनस टाइम bc स्क्वायर को, आई गॉट दिस रिलेशन 8 h2 minus h1 with this height h2 minus h1 by g, okay। so this is a relationships come in, so ये वाला रिलेशन याद रखना बस, this relation कि किसी भी अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट करूँ तो उन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड लगेगा, अगर ये मेरी हाइट h है दैट इज़ 8, यहाँ से यहाँ तक की जितनी हाइट है 8 टाइम्स ऑफ h minus h, ये जो हाइट है जितनी ये हाइट है 8 टाइम्स ऑफ h minus h बाई g का अंडर रूट, दैट इज़ व्हाट माई time of flight, okay। so this is all regarding our parameters, of projectile, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग जब हम विल गो इनटू द लेक्चर ऑफ क्वेश्चंस, तब और इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। अभी फॉर द टाइमिंग for to understand our theory, so these questions are more than enough, so now we'll move on to our next topic, which is equation of trajectory, okay। This is our next topic, equation of trajectory. I'll take just 10-second break. So let's start.
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो अभी तक हमने पैरामीटर्स देख लिए। नाउ विल मूव ऑन टू द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एज इन द इनिशियल ऑफ द लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे जो हमारा जो पैराबोला बनता है ये y और x, दैट इज in the space it is making, okay, in the x or y space it is making. It is not a relation with the time, it is with the space only, okay. Here x is also varying with time, x is also is a function of t, and here y is also a function of t. तो यहाँ पे जो y फंक्शन है t का, that is varies with t square, and here it is varying with t, okay. ये linearly वेरी कर रहा है, ये quadratically वेरी कर रहा है y, ठीक है. बट यहाँ पे जो है that is my के पार्टिकल स्पेस में किस तरीके से मूव कर रहा है. अगर वो x में इधर मूव कर रहा है तो y में कितना मूव कर रहा है. दैट इज व्हाट दिस पैराबोला इज गिविंग मी हियर, ओके. सो आई नीड टू नो कि इक्वेशन बिटवीन y और x के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है. इट्स अ पैराबोलिक रिलेशन. सो आई नीड टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x कि x की वैल्यू में चेंज करूँ एंड हाउ माई y इज गोइंग टू चेंज. आई नीड टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला फॉर द ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ओके. सो उसके लिए क्या करते हैं, हमने पहले भी देखा था कि मुझे पता है x इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, एंड y इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है. सो आई गेट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हेयर एंड आई पुट द वैल्यू ऑफ t हेयर एंड आई गॉट द रिलेशन बिटवीन y एंड x. आई गॉट द रिलेशन बिटवीन y एंड x, ठीक है. वही करेंगे हम लोग. तो एक प्रोजेक्टाइल है जो कि मैंने u से थ्रो करी, ठीक है. इसका जो x कंपोनेंट, इनिशियल x कंपोनेंट आ गया u cos थीटा, दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट, एंड वर्टिकल कंपोनेंट आ गया u sin थीटा, दैट विल रिटार्डेड फर्स्ट, गॉट जीरो एंड देन एक्सीलरेटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. मेरे को किसी पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है. दैट इज लाइंग ऑन दिस ट्रेजेक्ट्री, दैट सी हाउ वी आर गोइंग टू डू, ओके. सो ये x कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा, दिस इज माई x, तो ये x कितना होगा इसका u cos थीटा इंटू टाइम पीरियड में, दिस इज माई x. मैंने बोला ना x और x एंड y ऑल्सो इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो इट इज u cos थीटा इस टाइम पीरियड में, this is my x, okay. Now same time period में my y will be initial is u sin theta into t minus 1 by 2 g t square, okay. For the same time my y will be this one, okay. Now I find the value of t from here, t will be x by u cos theta, and I put the value of t here in the equation number 2, ठीक है. After putting the t here, I've got the relationship, u से u cancel, and I've got the relationship y is equal to x tan theta minus 1 by 2 gx square u square cos 2 theta. This is my relationship. So now it is y as a function of x in quadratic, okay. So it seems like y it's equating like this, y is equal to ax, my a into bx square. So this is my b, this is my b, okay. This is my b and this is my a, okay. This tan theta is my a. So it seems like दिस सेट ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर. और मेरे को पता है जब भी एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट मेरा नेगेटिव में होता है तो पैराबोला विल ओपन डाउन, द पैराबोला विल ओपन डाउन. और टू गेट द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट इट्स रेंज का हाफ एक्स और एच मैक्स, दिस इज एच मैक्स. तो जो एपेक्स होगा इसका जो दिस पॉइंट होगा, topmost point or the apex of parabola, we can say it is nothing but r by 2 इसका x और y होगा इसका h max, okay, right. So this is what I'm having. ये क्वेश्चन आ गई. अब इस इक्वेशन को थोड़ा और डिड्यूस करते हैं. मैंने यहाँ से x tan थीटा कॉमन ले लिया, दिस विल बी 1 माइनस यहाँ पे x tan थीटा से डिवाइड कर दिया मैंने, एंड इफ आई डिवाइड बाई x tan थीटा आई गॉट दिस x tan थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे. So I've got this y is equals to x tan theta 1 minus x by r. This is my range, okay. So these two equation you just remember. One is y is equal to x tan theta 1 minus gx square by u square cos square theta, okay. Second is y is equal to x tan theta 1 minus x by r, okay. So these two things you will remember in the equation of trajectory. So with these two equation of trajectory we could able to solve many problems, because if we want to know okay, whether this projectile is going to hit this point is a comma b, so we just put the value of a here and we see whether the y is coming as b or not, okay. So if the projectile is crossing these two height, so we can see कि इस height पे x की क्या value है, and we see कि whether we are getting the y value here as this h or not. So
from any way we can solve this. We can use this equation of trajectory that we are going to see in the coming problems. Okay, so these are my equation of trajectories, just remember these. So from here, this equation of trajectory, what can we deduce? One we have deduced is open downward, because my x square component is negative, so it will open downward, and symmetric about the vertical line. So it is symmetric about the my h max. This vertical line is there, this is h max, so it is symmetric about this line. So जितना जो से यहाँ पे होगा, so same curve will be like here. So it is symmetric about the vertical line h max. ठीक है. Now if we do कि इसकी maximum जो इसका जो this is dy by dx 0 किस पोजीशन पे आ रहा है मैक्सिमम, with that we have seen कि this maximum ये किस पॉइंट पे आ रहा है. So we can do it like this. One way to deduce intuitively, another way is to do mathematically. dy by dx लिया and I put the value of dy by dx as equal to 0. यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई r/2, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी r/2 if I put dy by dx is equal to 0. Okay, my x will be r/2. और intuitively हमने देखा कि ये whole range is r and I know maximum point is r/2. So this point will be r/2 comma h max. So this apex point will be r/2 comma h max, right? And mathematically we have solved it here. इस equation का dy by dx किया मैंने and I put dy by dx is equal to 0 and I've got, after putting dy by dx is equal to 0, I've got x is equal to, this x is equal to r/2, right? Now we'll see certain questions based on this. कुछ एक क्वेश्चंस अभी देखेंगे और उसके बाद फिर जब हम लोग मेन क्वेश्चंस वाला जो लेक्चर होगा उसमें और क्वेश्चंस लगाएंगे इसके, बट अभी कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो मेरे को देखिए एक प्रोजेक्टाइल है, तो इट्स बीन आस्क्ड के इट हैज़ बीन पासिंग थ्रू दीज टू पोल्स जो कि हाइट h पे हैं. इट हैज़ बीन पासिंग जस्ट क्रॉसिंग ओवर दीज टू पोल्स. तो मुझे पूछा गया कि इसकी हाइट कितनी है पोल्स की इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2. ठीक है, मेरे से हाइट पूछी गई है इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2. फिर मेरे से पूछा गया है T1 एंड T2 निकालो. सपोज ये यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम इसका T1 है और यहाँ से यहाँ तक जाने में इट इज़ T2. ठीक है, दिस इज़ T2 एंड दिस इज़ T1. ओके, सो मेरे से पूछा गया है पहले तो h निकालो इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2. दूसरा पूछा गया है T1 एंड T2 निकालो. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ h अगर h दिया हुआ है. ठीक है, तीसरा मेरे से पूछा गया है व्हाट इट्स रेंज. ये यहाँ से यहाँ पे अगर जस्ट क्रॉस ओवर करके इट इज़ लाइंग डाउन हेयर, सो ये रेंज निकालनी है मेरे को r एंड देन आई हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस पोल्स. ओके, क्लियर है. एक बार और देख लेते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल फेंका जो जस्ट क्रॉस ओवर कर रहा है दो पोल्स को. ठीक है, पहले दे रखी है उसकी हाइट. सपोज इफ़ यू टेक इट्स हाइट h, सो इट इज़ क्रॉसिंग दिस पोल फर्स्ट टाइम एट T1 एंड इज क्रॉसिंग दिस पोल द सेकेंड टाइम एट T2. ओके, जो सेकेंड पोल को एट T2 क्रॉस कर रहा है. सो आई नीड टू नो this height is what is this height in terms of T1 and T2. सेकेंड केस में मेरे को बोला है कि अगर इसकी हाइट h है, so you tell me what is this T1 and what is this T2. What is this T2, T1 and T2 in terms of h. फिर मेरे से पूछा गया what is this range and what is this separation इन दोनों के बीच में. ठीक है, now we'll do with the basic equation of kinematics लगाते हैं पहले. So दिस h निकालते हैं दोनों T1 एंड T2 के लिए और दोनों को इक्वेट करते हैं. ये हमने पहले भी किया हुआ है. सो दिस इज़ माई h, दिस हाइट h, y इज इक्वल टू वर्टिकल इज u sin थीटा T1 माइनस 1/2 g T1 स्क्वायर. सेम वे दिस हाइट h u sin थीटा T2 माइनस 1/2 T2 स्क्वायर. दोनों के लिए मैंने कर दिया. अब दोनों के h को मैं अगर इक्वेट करूँ, आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ u sin थीटा. ठीक है, दोनों के h को अगर मैं इक्वेट करूँ, सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ u sin थीटा विच इज़ g T1 प्लस T2/2 एंड आई पुट दिस वैल्यू बैक हेयर इन इक्वेशन 1 एंड आई गॉट h एज अ फंक्शन ऑफ g T1 T2. ओके, h एज अ फंक्शन ऑफ g T1 एंड T2 that we have seen earlier also in the beginning of this chapter, also in the beginning of this lecture also we have seen. So this is my h in terms of T1 and T2. अब मेरे को दिया हुआ है दिस वैल्यू ऑफ h इज गिवन टू मी. ठीक है, नाउ मेरे को T1 एंड T2 निकालना है. ठीक है, अगेन आई विल यूज दिस इक्वेशन. h मेरे को दिया हुआ है, h इज गिवन, h इज इक्वल टू u. नाउ आई डोंट नो T1 एंड T2, आई जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन h इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t. ठीक है, दिस
because it's a projectile, it will going to go up and down, so same height it is going to achieve in 2 times. So because it's a quadratic equation, we get two values of t, एक ऊपर जाते टाइम एक नीचे जाते टाइम. So h is equal to u sin theta t minus 1 by 2 g t square. So now I rearrange this, and this is a equation in quadratic equation, so it will yield me two roots t1 and t2. सो जो यहाँ से T1 एंड T2 आएंगे मेरे, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ h. ठीक है. तो सेम मैंने यहाँ पे किया है कि दिस इक्वेशन मेरे को h गिवन है, यहाँ पे मेरे को h निकालना था, T1 T2 गिवन था, यहाँ पे मेरे को h गिवन है. आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू यू साइन थीटा t माइनस 1 by 2 gt स्क्वायर. आई रीअरेंज इनटू क्वाड्रेटिक, सो माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज t स्क्वायर 2u sin theta by g into t plus 2h by g is equal to 0. Now this is quadratic in h. This is my this is like ax square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है. To get the value of x1 and x2, these are the two values I can get it like this, minus b plus minus root b square minus 4ac divided by 2a. और b की वैल्यू क्या है मेरी, b is my this is my value b, this is equal to b, this is my c, and my a is equal to 1. So I put all this value here and I've got two values of t, दो की वैल्यू आएंगी t की, दैट इज इन टर्म्स ऑफ h, बिकॉज दिस इज इन टर्म्स ऑफ h. इस h की टर्म्स में आ जाएंगी मेरी दोनों वैल्यूज. ओके, राइट. नाउ विल सी द नेक्स्ट वन. मेरे को r एंड d निकालना है. मेरे को r इज माई वॉट, दिस माई r. ठीक है. r इज वॉट हेयर इज x1 प्लस x2. ठीक है. r इज दिस x1 प्लस x2 एंड d इज माई d is my x2 plus x1 minus d is my x2 minus x1. This x2 minus x1 is my d. Okay. Now here we are going to use the equation of trajectory. Equation of trajectory मेरी क्या थी, y is equal to x tan theta minus gx square 2u square cos square theta. अगर मैं y, मेरे को यहाँ पे निकालना है फॉर द y, इस y की वैल्यू h के लिए, what will be my these two, x1, this is my x1 for y h and this is my x2. ठीक है. सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में अगर मैं y की वैल्यू h डाल दूँ एंड आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 इन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई गेट टू वैल्यूज ऑफ x. ठीक है. दो वैल्यू ऑफ x की आएंगी. जैसे मेरे ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी मेरी y इज इक्वल टू दिस. ठीक है. y की वैल्यू को मैंने यहाँ पे h डाल दिया. दिस इज माई x1 कॉमा h1, x1 कॉमा h एंड दिस इज माई x2 कॉमा h. ठीक है. यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू को h डाल दूँ, सो आई गेट टू वैल्यूज ऑफ x बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. टू वैल्यूज ऑफ h मेरी कैसे आएंगी, आई अप्लाई द सेम वन, माइनस b प्लस माइनस रूट plus minus root b square minus 4ac by 2. The same formula I'll apply and I'll get the value of x1. I get the value of x1 and x2 from this equation after putting the value of h here. Okay. जो x1 and x2 आएंगी मेरी यहाँ पे values. ठीक है. You don't have to calculate those value. With this also we can calculate because I know some of the roots in quadratic equation में x1 and x2 are my two roots which is from this equation. तो sum of the roots क्या होते हैं मेरे, माइनस b by a. ठीक है. माइनस b by a क्या होता है मेरा इक्वेशन में, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है. जो x के साथ वाला कोफिशिएंट होता है दैट इज़ माई b. सो a के साथ a x स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट होता है दैट इज़ a. यहाँ पे देखते हैं माइनस b मीन्स this we'll rearrange this equation in this manner. Okay. We'll rearrange this and minus b will be this x के साथ वाला component tan theta divided by a is my this component. Okay. I'll put this value and I've got x1 plus x2. x1 plus x2 is what, x1 plus x2 is what, r. ठीक है. Sum of the roots, r is my sum of the roots, sum of the roots. ठीक है. मेरे को पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है दोनों कि सेपरेट रूट्स निकालूँ फिर दोनों को ऐड करूँ. From this equation also I know sum of the roots क्या होता है मेरे, x1 plus x2 is equal to minus b by a. Okay. Minus b by a is the coefficient of x and the coefficient of x square. Same way d is my x2 minus x1 और difference of the root क्या होता है मेरा, under root of b square minus 4ac by a. This is my difference of root, under root of b square minus 4ac by a. b square की वैल्यू मेरे को यहाँ से निकल जाएगी. This is my b square
बी स्क्वायर माइनस 4 ए इज़ माई 1, सी की वैल्यू मेरी ए इज़ माई दिस माई ए, सी की वैल्यू इज़ माई 1 एंड डिवाइड बाई ए, एंड आई गॉट दिस डिफरेंस इन द रूट विद दिस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी का अंडर रूट डिवाइड बाई ए. ठीक है, डिफरेंस ऑफ द रूट मेरे यहाँ से आ जाएंगे. ओके, सो दैट्स हाउ यू विल सी दिस प्रॉब्लम. सो एक बार और देख लेते हैं कि मेरे को दे रखा है, आई नीड टू फाइंड आउट कि इफ़ आई थ्रो अ प्रोजेक्टाइल आई नीड टू फाइंड आउट इट्स रेंज एंड इट्स एंड डिफरेंस के जब उसकी हाइट वो एच पे रीच करे. ठीक है, दिस एच कैन बी एनीथिंग. सो जब ये हाइट एच पे रीच कर रही है इसकी, ठीक है, जब ये पोल के एच पे रीच कर रही है, आई नीड टू फाइंड आउट इट्स रेंज एंड इट्स डिफरेंस के दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है. उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने आई नो कि वाई मेरा जो एच है, आई पुट दिस इन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में मैंने एच डाल दिया एंड आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, नाउ आई गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स. मेरे एक्स के दो रूट्स आ जाएंगे, x1 एंड x2. ठीक है, रेंज इज़ माई सम ऑफ रूट x1 प्लस x2 एंड माई डिफरेंस बिटवीन देम इज़ माई, कि इन दोनों के बीच का दिस डिफरेंस. ठीक है, तो कभी भी आपको प्रोजेक्टाइल में इस हाइट पे सपोज ये क्रॉस ओवर कर रहा है, सो इफ़ यू वांटेड टू नो, सो रेंज इज़ माई दिस x1 प्लस x2, सम ऑफ रूट्स होंगे, जो ये मेरा x1 होगा, x2 होगा फॉर दिस h, और जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का दैट इज़ x1 माइनस x2. ठीक है, difference of the root and the sum of the roots. Sum of the root is minus b by a, that is my, from the quadratic equation, this is, we have got it, and difference of the root is minus b square, or root b square minus 4ac by a. Okay, now we'll move on to the next one. नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि मैंने थीटा एंगल से थ्रो किया और इट जस्ट क्रॉस ओवर द ट्राइंगल, जस्ट क्रॉस ओवर दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, इसकी तीनों साइड्स को क्रॉस ओवर कर रहा है. यहाँ से स्टार्ट किया, इसके एक साइड एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे गया और तीसरे वर्टेक्स पे जाके लैंड कर गया. दिस इज़ व्हाट इट्स बीन गिवन. और मेरे को प्रूव करना है कि ये थीटा, ये मेरे को दे रखा है कि थीटा पे मैंने प्रोजेक्ट किया, एंगल आर देयर, एंगल दिस एंगल्स फॉर द ट्राइंगल इज अल्फा एंड बीटा. सो आई हैव टू प्रूव tan थीटा, दिस प्रोजेक्टेड एंगल इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ताकि ये एक वर्टेक्स से फेंकूँ तो दूसरे वर्टेक्स और तीसरे वर्टेक्स को कवर अप करें. ओके, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट. सो आई यूज़ द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कि यहाँ से मैंने फेंका, सो इट शुड कवर अप दिस पॉइंट ऑल्सो एंड दिस पॉइंट ऑल्सो. सो आई यूज़ द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने देखी थी, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर. ठीक है, दिस इज माई ट्रेजेक्ट्री थी, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन थी. सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y h, दिस इज माई h, दिस इज पॉइंट इज माई, सपोज आई टेक इट एज a, आई टेक इट एज b, so this point will be my a comma h. ठीक है, this point is my a comma h. I put this point in my equation of trajectory, h a x tan theta 1 minus a, और रेंज कितनी हो गई मेरी, a plus b, रेंज इज माई a plus b. so h is equal to a tan theta, यहाँ से कैलकुलेट किया मैंने, b डिवाइड बाई a plus b. now I'll take tan theta and I'll bring this here and h here. so अगर मैं यहाँ पे ये ले गया तो h into a plus b हो गया by b इंटू ए, इसको कैलकुलेट किया मैंने, सॉरी, एच इंटू ए प्लस बी बाई ए बी. ठीक है, तो यहाँ से मेरा आ गया एच बाई बी प्लस एच बाई ए, टेन थीटा मेरा आ गया एच बाई बी प्लस एच बाई ए, दिस वन. ठीक है, और एच बाई बी क्या है मेरा, यहाँ से मैंने देखा, दिस इज टेन बीटा इज इक्वल टू एच बाई बी एंड टेन अल्फा इज इक्वल टू एच बाई ए. ठीक है, सो आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर एंड आई गॉट दिस इक्वेशन, tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा प्लस tan अल्फा. राइट, नेक्स्ट विल सी दिस क्वेश्चन. इसमें क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इनटू अ स्पेस सो एज टू हैव द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंजेस आर. ठीक है, टेकिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ माय पॉइंट वेयर द स्पीड इज मिनिमम. पहले तो स्पीड मिनिमम किस पॉइंट पे होती है, आई नो speed of any projectile v is equal to अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. ठीक है, हर किसी पॉइंट पे. तो मैक्सिमम मिनिमम ये कब होगी, जब मेरा vy इज इक्वल टू गेट जीरो हो जाएगा. वो किस पॉइंट पे होता है, दैट इज दिस मैक्सिमम पॉइंट. ठीक है, अब मेरे को इस मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इस मैक्सिमम पॉइंट के, दैट व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट.
इस पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम होगी। मेरे को देखा है सो टू अचीव द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब करेगा? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, ठीक है। So maximum horizontal range R is given R is equal to at theta is equal to 45 degree. My maximum horizontal range has come is equal to U square by G. For this maximum horizontal range, what is my theta is equal to 45 degree आ गया. अब theta is equal to 45 degree, I put it in the height. Height क्या है मेरा? Because this point, ये point क्या है मेरा? R by 2 maximum range, comma H max ही तो है ना ये, ठीक है। अब मेरे को H max का कोऑर्डिनेट चाहिए। H max के कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा मेरा? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है मेरा। यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू डालूँ 45 डिग्री है। आई गॉट दिस यू स्क्वायर बाई 4g। यू स्क्वायर बाई 4g कितना है? यू स्क्वायर बाई जी इज माई आर मैक्स, यू स्क्वायर बाई 4g इज माई आर मैक्स बाई 4। ओके, दिस आर मैक्स बाई 4। नाउ द हाइएस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? आर मैक्स बाई 2, दिस इज माई आर मैक्स बाई 2 कॉमा आर मैक्स बाई 4, दिस इज माई पॉइंट ऑफ this is my this A point. Okay, clear? Next we'll move on to this question. इसमें मेरे को दे रखा है range of projectile is R and is same when its maximum heights are h1 and h2. We have to find out the relationship between r theta and h1 and h2 maximum height, ठीक है। तो इसके अंदर दो एंगल पे फेंका गया इसको, ठीक है, एंड दोस एंगल्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट्स व्हाई इट इज़ मेकिंग द सेम रेंज, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज़ मेकिंग द सेम रेंज। हमने पढ़ा था अपनी थ्योरी में कि ओनली फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इट मेक्स द सेम रेंज, बट इनका हाइट इज़ डिफरेंट, ठीक है। वी हैव सीन हाइट डिपेंड्स ऑन योर यू वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ विल सी h1 क्या होगा मेरा? h1 इज़ माई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h1 इज़ दिस वन, और ये जो एंगल होगा दिस इज 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सो h2 विल बी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन r h1 एंड h2, एंड आई नो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई g, ये मेरा r होता है। नाउ आई नो कि इट इज़ साइन थीटा कॉस थीटा है यहाँ पे, एंड आई कैन गेट इट फ्रॉम हेयर, सो आई मल्टीप्लाई दीज टू थिंग्स, h1 h2 मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया 1/16 यू स्क्वायर। आई टेक दिस विल बी 1/4, आई जस्ट पुट 4 इनसाइड टू मेक इट साइन 2 थीटा, सो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आ गया मेरा का होल स्क्वायर आफ्टर डूइंग दिस, एंड दिस इज 1/16, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर आर स्क्वायर ओनली, सो 1/16 आर स्क्वायर। रिलेशनशिप बिटवीन r and h1 and h2 will be this, ठीक है। r is equal to 4 अंडर रूट ऑफ h1 and h2, ठीक है। h1 and h2 जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सो अगेन ट्राई टू रिड्यूस इट इन दिस टू थिंग्स इनटू दिस यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। इसमें रिड्यूस करूँगा साइन 2 थीटा, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा दैट विल बी u4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4g स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से ही डिवाइड किया, सो u स्क्वायर साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये वाली वैल्यू साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय g, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया इंटू 1/16। ओके, सो दिस इज नथिंग बट दिस इक्वेशन इज नथिंग बट माई r, दिस इज माई r, I have just put the value of r here, so I've got the relationship r is equal to 4 under root h by h1 h2। ओके, सो यहाँ पे जो की पॉइंट था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में थीटा फॉर द रेंज, अगर दोनों की रेंज सेम है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो किया होगा, ठीक है। ये अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा। आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h1 एंड h2 इन टर्म्स ऑफ थीटा, और देन आई नो r और थीटा के बीच में रिलेशन, एंड वी जस्ट डिड्यूस that relation and I've got the final result as r is equal to 4 root h1 h2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मेरे को प्रोजेक्शन के 2 सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल इज ट्रैवलिंग एट एन एंगल एट ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। मुझे इनिशियली मैंने थीटा एंगल पे फेंका था, और 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी u थी, और वो 30 डिग्री मेक करने लगता है। 30 डिग्री, इट इज़ मेकिंग अ 30 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल। मुझे पता है कि u cos थीटा हमने देखा था इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा v cos 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। दैट इज़ वन रिलेशन वी हैव गॉट इट फ्रॉम हियर। फिर मेरे को बोला आफ्टर 1 more सेकेंड इट्स ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है। दैट मीन्स
यहाँ तक 2 सेकेंड में पहुँचा, यहाँ से यहाँ पे 1 सेकेंड में पहुँचा और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, दैट मीन्स दिस इज इट्स मैक्सिमम हाइट ना. एट दिस पॉइंट वी वाई विल गेट 0, और अगर ये ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली कर रहा है तो वी वाई गेट 0. सो दिस इज़ माई 3 सेकेंड जो आएगा मेरा यहाँ से यहाँ तक. यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड. यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड हो गया. सो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल से मूव कर रहा है, दैट मीन्स वी वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया. तो दिस 3 सेकेंड इज नथिंग बट योर टाइम ऑफ एसेंट. इट इज़ टाइम ऑफ एसेंट. ओके, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है मेरा? दिस इज t/2. t इज़ माई टाइम ऑफ फ्लाइट, सो 2u sin theta by 2g, इससे ये कैंसिल. सो दिस इज u sin theta by g इज़ माई टाइम ऑफ एसेंट विच इज़ 3 सेकेंड. यहाँ से मैं अपना u sin theta कैलकुलेट करूँगा, दैट इज़ 30. ओके, अब मैंने पहले देखा था रिलेशन क्या होगा मेरा, u cos theta विल ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज u cos theta इज इक्वल टू v cos 30, u cos theta इज इक्वल टू v cos 30. और सेकेंड क्या होगा मेरा कि जो v sin 30 होगा, v sin 30 इज इक्वल टू u sin 30 माइनस g इंटू 2 सेकेंड. 2 सेकेंड बाद व्हाट इज दिस वैल्यू, g इंटू 2 सेकेंड. ओके, सो दिस इज माई फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, वर्टिकल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट. ठीक है, initial velocity minus gt, initial velocity minus gt. u sin theta I've calculated here, I put the value at 30, ये 20 हो गया. sin theta is 1/2, I'll take it here and I've got the value of v as 20. okay, मेरे पास v की वैल्यू आ गई 20. I just put the value of v here, v की वैल्यू यहाँ पे डाली मैंने 20 and I've got 10/10√3 is my u cos theta. ये u cos theta 10√3 आ गया. now u cos theta 10√3 आ गया मेरा ये, और u sin theta ये है, एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ tan theta एज 60 डिग्री √3. और इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करूँगा, गेट द वैल्यू ऑफ देयर मॉड, बिकॉज मेरे को u sin theta पता है दिस 30, u cos theta हो गया मेरा 10√3. नाउ आई स्क्वायर एंड ऐड, आई स्क्वायर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा. आई स्क्वायर 300 स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस 10√3 का होल स्क्वायर करूँगा, एंड आई जस्ट टेक एन अंडर रूट. It will give me the value of u as 20√3. राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे को कि एक हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल की r है, इट बिकम्स वो r+2h हो जाती है बिकॉज एक विंड फ्लो कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ठीक है, सो पहले ये r थी यहाँ पे, नाउ बिकॉज इट इज़ गेटिंग सम पुश फ्रॉम दिस डायरेक्शन, सो नाउ इट इज नाउ r+2h. so ये जो 2h एक्स्ट्रा फैक्टर आया, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पुश दैट इज गेटिंग दिस पुश from this direction, some acceleration will be there, so it is providing the push. So because of that this 2h factor has come, because r normal थी, 2h factor has come. We know कि horizontal अगर ax का will not going to affect anything in h में कोई effect नहीं आता, because h is totally depending on vertical height and it will not affect the time of flight. ठीक है, so इसकी दोनों केस में यहाँ से यहाँ तक में प्लस यहाँ से यहाँ तक में दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम. ठीक है, t2 t1 टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम, प्लस दोनों की हाइट विल बी सेम. हाइट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, हाइट विल बी सेम. वाई? बिकॉज माई हाइट इज डिपेंडिंग ऑन द वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और जो विंड है, विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ओनली द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, नॉट द वर्टिकल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इम्पैक्ट हमेशा रेंज में आएगा, नॉट इन द हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज डिपेंडिंग ऑन द वर्टिकल वेलोसिटी. ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट है. नाउ विल अप्लाई दैट. r इज माई uxt जो इनिशियल था. नाउ विद द विंड वेलोसिटी माई r विल बी u+2h. दिस इज माई uxt ut प्लस 1/2. सपोज आई टेक इट, मेरे को निकालनी है यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितनी इम्पार्ट कर रही है, ux हाफ ax इंटू टी स्क्वायर. टी इज़ माई टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा अगेन, बट मेरा हॉरिजॉन्टल बढ़ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे दिस इज माई टाइम ऑफ फ्लाइट. नाउ आई नो दिस r एंड दिस इज सेम, दिस इज सेम. r इज इक्वल टू uxt. जो 2h आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ माई 1/2 जो मेरा हॉरिजॉन्टल पुश आएगा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, अब मैं यहाँ पे आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर कितना होगा, 4u/2/g. ठीक है, 2u sin θ/g. ax यहाँ पे 2u, यहाँ पे मैंने टी स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, दिस वन 2u स्क्वायर बाई जी. एक यहाँ पे आ गया, एक जी मैंने बाहर ले लिया. नाउ दिस 4
4 u square by g. It is what? U square by g is nothing but my h. U square by g is nothing but my h. So I just put 4a. This is I just take this 2 here, so uy square by 2g is nothing but my h. So u square, this 2 also I'm taking it here, so my u square by uy square by 2g is my 4 is my h, so it will be a into 4h by g. ठीक है, that is equal to 2h. h से h cancel हो जाएगा. a will be my, this will be 2, a will be my g by 2, that is 5. okay, clear. so इसमें क्या हुआ है मेरा, पहले मेरी रेंज थी दिस आर. ओके, उसके बाद सम विंड ब्लो करी जिसने इसको हॉरिजॉन्टल पुश दिया. ठीक है, तो इसकी क्या हुआ, इट्स हॉरिजॉन्टल पुश की वजह से इसका दिस रेंज गॉट इंक्रीज टू आर प्लस 2h. यहाँ तक आर था. तो मुझे पता है जब भी हॉरिजॉन्टल पुश मिलता है टाइम विल रिमेन कांस्टेंट. द टाइम ऑफ फ्लाइट इज बिकॉज 2uy ओवर g होता है. दिस uy पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ विंड का. सेम वे हाइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. हाइट विल बी माई uy स्क्वायर बाय 2g. हाइट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, मेरा हाइट भी सेम रहेगी बिकॉज हेयर ऑल्सो इट इज़ वर्टिकल वेलोसिटी. इन दोनों पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, दैट विल बी रिमेन सेम. तो नाउ जो मेरा 2h फैक्टर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ 1/2 ax इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर. ठीक है, सो जो मेरी टोटल रेंज आएगी नाउ इट इज़ ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. ओके, ut क्या है मेरा, इनिशियल वेलोसिटी इज ux इंटू टी, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा मेरा. ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, पहले भी सेम रहेगा अभी भी. सो आई टेक टी प्लस 1/2 टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर. नाउ दिस r I know it is ut, so I'll cancel this r. My 2h is because of this. I just put the value of t from here to here, and I've got this as I deduce this and I've got a as g by 2. okay, I convert each and t की वैल्यू मैं पहले ये 2y by g 2uy by g डालूंगा, और फिर when my t square is going to, I'll convert this thing into h. I convert this thing into h. इसको h में कन्वर्ट करके h मेरा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ a as g by 2. ओके, सो एक और क्वेश्चन देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बॉय है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड ही थ्रोज अ बॉल इन वाई जेड प्लेन. ही थ्रोज अ बॉल इन दिस प्लेन. वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बट ही थ्रोज अ बॉल इन वाई जेड प्लेन. ओके, सो दैट इज़ अ की हेयर कि इट इज़ इन्वॉल्विंग ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स सिस्टम. सो अगेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, बट ही थ्रोज अ बॉल विद वर्टिकल 30 डिग्री से एंड इन वाई जेड प्लेन. ठीक है, अपने परपेंडिकुलर थ्रो करता है. जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसका, जिस डायरेक्शन में भाग रहा है उससे परपेंडिकुलर थ्रो करता है. ठीक है, थ्रो अ स्टोन इन वाई जेड प्लेन परपेंडिकुलर टू हिज रनिंग एट स्पीड u is equal to 12 at angle 30 degree from vertical. ठीक है, at angle 30 degree from vertical. so यहाँ पे इसकी I'll take the initial speed, initial velocity कितनी हो जाएगी, एंड मेरे से पूछा है जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. इनिशियल स्पीड कितनी हो गई इसकी स्टोन की, इट बिकॉज बॉय इज रनिंग सो इट विल इम्पार्ट हिज स्पीड ऑल्सो टू स्टोन, दैट इज 8i प्लस इट इज़ 12 वाई डायरेक्शन में इज 12 cos 30 डिग्री j, एंड इस डायरेक्शन में इट इज़ 12 sin 30 डिग्री k. ठीक है, दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी. केवल वी आर हैविंग द g इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, g इज़ इन वाई जेड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है इन वाई जेड प्लेन. तो ओनली द वाई स्पीड, जो वाई डायरेक्शन में जितनी भी वेलोसिटी होगी दैट इज़ गोइंग टू गेट डिसिपेटेड टू 0. अदरवाइज x में कोई चेंज नहीं आएगा. नो चेंज इन x डायरेक्शन एंड नो चेंज इन y डायरेक्शन ऑफ स्पीड. ओ सॉरी, नो चेंज इन x डायरेक्शन एंड नो चेंज इन z डायरेक्शन. जो स्पीड जो होगी y डायरेक्शन वाली दैट इज़ गोइंग टू गेट 0. ओके, सो दिस स्पीड इज़ गोइंग टू गेट 0 because there is an acceleration downward, so it will get 0. so highest point पे जो मेरी speed हो गई that is, this is 8i plus this one, so highest point पे this will be my speed. okay, because x की speed में कोई change नहीं आएगा because there is no air drag, no opposing push coming in this x direction initial velocity or
z डायरेक्शन वेलोसिटी, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा. ओनली चेंज आएगा जो इस पर वर्टिकल पुश लग रहा है फ्रॉम द ग्रेविटी, इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द वाई साइड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टू 0. ठीक है, दिस विल गेट रिड्यूस टू 0 एट द हाइएस्ट पॉइंट. सो माई फाइनल वेलोसिटी इज वी हाई बाय दिस वन. ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल टेक अ क्विक रिकैप. कल हम फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे प्रोजेक्टाइल में. But I think that's all for today. We have covered up all the parameters in today's lecture. हमने देखा time of flight and height. Time of flight and height vertical velocity पे depend करता है. It is not depending on horizontal velocity. So अगर कुछ भी अगर horizontal velocity में change आ रहा है, that is not going to affect your time of flight. ठीक है, that is what we have seen, and we have seen how time of flight varies with vertical velocity, initial vertical velocity, and how height is varying with initial vertical velocity, that we have seen. And then we have seen complementary angles, we have seen the range, we have seen the horizontal range. We have seen the time of flight here. In the time of flight we have seen the complementary angles के बीच में relation, और we have seen कि अगर मेरे को टाइम पीरियड दे रखा है किसी भी पॉइंट का T1 हेयर जाने का और T2 हेयर आने का, तो मेरे को किसी भी पॉइंट की हाइट निकालनी है. सो that is the relation we have calculated. Then we have calculated the maximum height. At this height the vertical velocity will get 0. On that basis we have got the maximum height. ठीक है, maximum height का we have seen the relationship with the complementary angle. अगर maximum height same है तो we can deduce कि उसका vertical component of velocity is same. ठीक है, so horizontal range निकाली हमने. horizontal range is depending on ux and time of flight, and we have calculated this. ठीक है, तो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन बोथ यू एक्स एंड यू वाई, दोनों फैक्टर हैं इसमें. हॉरिजॉन्टल रेंज में यू एक्स फैक्टर आ रहा है इसका बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. यू वाई फैक्टर आ रहा है बिकॉज ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट. इसका हॉरिजॉन्टल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखा हमने. वी हैव टेकन द टाइम पीरियड ऑफ बोथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड वी हैव गॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन देम 2r/g. और फिर हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो रेंज होती है दैट इज़ सेम. ठीक है, हियर ऑल्सो वी हैव सीन इट इन दिस कॉम्प्लीमेंट्री रेंज के लिए माई complementary range के लिए my horizontal range is same, but height is varying because height depends on your vertical velocity. Height depends on your vertical velocity. Vertical velocity will be more if your sin theta is more. Okay, sin theta कब ज़्यादा होगा? जब theta ज़्यादा होगा, right? So that's why. और vertical height is varying with in a quadratic manner with the initial vertical velocity, and time varies linearly with initial vertical velocity. ठीक है, then we have deduced some relation. अगर r और h में relation दे रखा है then I can take the relation in theta. Then we have done certain questions. We have seen the question अगर तो दोनों की height same है. ठीक है, अगर दोनों की horizontal अगर दोनों की range same है और अगर दोनों सेम एंगल पे थ्रो किए हुए हैं, तो इन तीनों के इनके बीच में व्हाट इज़ द रिलेशनशिप between their speeds. So that what we have deduced, and we have find out which one is having the maximum one. Here also we have concluded in the relationship between their speeds, angle and their range. Then we have seen कि अगर मैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली देखूँ कि A से B में कितना उसको टाइम पीरियड लग रहा है. So that is what we have calculated here. It depends on this difference in height, h minus h, 8 times of under root of this. We have got this relation. Okay, then we have seen the equation of trajectory. One equation of trajectory we have seen it here, that is how x changes will bring a change in y. ठीक है, in the plane, in the xy plane. ठीक है, it is a space in which the projectile is moving. Another relationship we have deduced from here is y is equal to x tan theta 1 minus x by r. ठीक है, on that basis we have done certain questions. Here this question we have done where we have seen the sum of roots and the difference in roots with this equation, and we have calculated the range and difference between two with this. And certain questions we have done on the basis of our parameters, right? So I think that's all for today. कल हम लोग आगे proceed करेंगे in projectile. Okay, so all right, thank you.